plane figure. And in this triangle, how trigonometry helps? Trigonometry helps. Trigonometry helps to study the triangle. Study the triangle. Means the laws of trigonometry helps to study the triangle. Triangle is a plane diagram. In the plane, we can draw the triangle in a plane. It is a plane diagram. Sphere is not a plane diagram. Sphere is not a plane diagram. Triangle has a sides, and its sides are related and angles are related in this each other by some way in trigonometry, and we are going to study about this relation. Here, triangle is a plane. Trigonometry helps to study the triangle. Triangle is always a plane figure, plane diagram. Plane. If you draw the triangle, if you join all these three vertices, and if you consider them, they are always in a plane. All the three vertices of triangle are always in a plane. It is a plane. So we are considered that trigonometry in a plane. Trigonometry of plane. प्लेन में ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है? तो इसका पहला पार्ट है ट्रायंगल. Now here we have this triangle. About the triangle we have something. Triangle has a three angles, and these three angles, these are the interior measures of the triangle. Interior measurements. Now side opposite to these angles are denoted by small letters. These are the small letters. Now we will see only the angles of the triangle. Trigonometry of angles of triangle. अब देखिए ये ट्राइंगल का एडिशन है a प्लस बी प्लस सी, वो होता है 180 डिग्री. a प्लस बी प्लस सी आपका होता है 180 डिग्री. आपका b प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 अगर आप करते हो तो ये हो जाता है 90 डिग्री. a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाता है 90 डिग्री. अब हम किसी भी दो वैल्यू के बारे में अगर सोचेंगे, इससे a प्लस बी प्लस सी 180 से अगर हम थिंक a plus b, so we can write a plus b is 180 minus c, b plus c is 180 minus a, and a plus c is what? 180 minus c. 1 2 3. अब इससे 3 a plus b by 2 90 minus c by 2 1. इससे और 2 b plus c by 2 90 minus a by 2. और तीसरा a plus c by 2 90 minus b by 2. Write down all these three of both the okay. So these are the things in a triangle you have. Again, if we think about only triangle, we are not thinking about trigonometry, only triangle. Then triangle are different types according to angle and according to side. You must know all the angles and sides and their types. On the sides, the triangles, on the angles. Okay. Now before this, you were having some trigonometry from 11th standard that if you have the angle 180 minus theta, and in which quadrant 180 minus theta? Quadrant बताइए कौन सा है? 180 minus theta कौन सा quadrant? Second quadrant में. तो second में कौन सा रेशो पॉजिटिव रहता है? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी रेशो नेगेटिव होते हैं. ओके. अब आपको क्या करना है, जब हम बोलेंगे व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा.
कोसाइन 180 माइनस थीटा, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। टेंजेंट 180 माइनस थीटा, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। आपको बोला कॉट 180 माइनस थीटा, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव साइन रहेगा। सेकेंड 180 माइनस थीटा, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। व्हाट अबाउट कोसेक 180 माइनस थीटा, उसका आंसर आपका पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब चेंजेस बताता हूँ। 180 माइनस थीटा में चेंजेस बताता हूँ। हाँ, सभी रेशो एज इट इज रहते हैं, साइन, कॉस, टेन, रेशो बदलता नहीं है, आपका वही रेशो रहता है, सेक और कोसेक। एंगल कौन सा रहता है बोलिए? व्हाट में मस्ट बी द एंगल, कौन सा एंगल रहेगा? हेलो सर इन विच कुठला क्वाड्रंट? एंगल असेल? नहीं, साइन 180 माइनस थीटा प्लस प्लस साइन तो समझ में है, साइन माइनस वगैरह, बट ये साइन क्या है? साइन क्या? थीटा। साइन 180 माइनस साइन थीटा, यस, ये बोलना है मुझे, ये थीटा रहेगा। ओके, ये थीटा रहेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ सभी के लिए। साइन ऑफ, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, साइन 120, ध्यान दीजिए 120, 120 को हम कैसे लिखेंगे? साइन 180 माइनस 60, समझे क्या आप लोग? आ गए कि नहीं सेकंड क्वाड्रेंट? यस सर। अब इसको, हाँ, ऐसे इस फॉर्मेट में लाना है आपको, किसी भी एंगल को। यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट एंड देन वी कैन यूज द फॉर्मूला। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। तो सेकंड में ये क्या है? प्लस साइन थीटा की जगह कौन है? 60, इसलिए इसकी वैल्यू साइन 60 यानी √3/2 लिख दो, एक एग्जांपल और ये सभी फॉर्मूले। अब हर एक का 120 हम फाइंड करेंगे, हर एक का 150 फाइंड करेंगे, हर एक का हम 135 फाइंड करेंगे। तो किस तरह से वैल्यू बनते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। नॉलेज हैज अ पावर। यस सर, हो गया। ओके, साइन ओके, वर्टिमिटी समझ में आया ना आपको? कैसे? यस अभी सर। हम लिखेंगे साइन, साइन 120 के बाद, अभी देखो ये आपके ऊपर है, आप लिख रहे हैं या नहीं, लिखना चाहिए बट। अब साइन 120 के बाद हम ले लेते हैं कॉस 120। तो कॉस 120 को हम कैसे लिखेंगे? 180 माइनस 60, क्वाड्रेंट आया फर्स्ट, साइन आया निगेटिव, कोसाइन, बट एंगल हुआ 60, तो -1/2 लिखो कॉस ऑफ, कॉस के लिए कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, हर एक क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे आप, हर एक क्वाड्रेंट का एंगल का वैल्यू फाइंड करके दिखाएंगे। सभी वैल्यू जरूरी है, वैल्यू अगर आए तो हमें फॉर्मूले याद आते हैं ऑटोमेटिक। -1/2 कॉस 120 के बाद मेरे पास है टेंजेंट 120, आप मुझे हेल्प कीजिए। टेंजेंट 120 को हम लिखेंगे टेंजेंट 180 माइनस 60, तो क्या होगा? tan 180 माइनस 60, क्या लिखो? क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में टेंजेंट कैसा है? निगेटिव, रेशियो tan 60 है ना, तो -√6। सभी को सब टेंजेंट 120 हुआ, अभी कॉट 120, सेक 120, कोसेक 120 लिखते जाइए आप, आपके नोटबुक में चाहिए ये सब।
sec 120, cot आपको करना है, cot 120 का आप करो, cosec का आप कर कीजिए, secant of 180 minus 60, नेगेटिव साइन, secant 60, cos 60 के जैसा है, उल्टा हो जाता है, 1 cos 60 मतलब उल्टा -2, cosine और secant एक दूसरे से रिलेटेड है। cot का आपको फाइंड करना था, cot 120 यू फाउंड, मेरे साथ भी लिखते जाइए, cot tangent 120, cot 180 minus 60 minus cot 60, आई थिंक -1/√2। वैल्यू अगर नहीं आती तो इधर यहाँ तक लिखो, ये बाद में देख के लिखो। 180 minus theta, quarter and second, only sin and cosec positive। cosec का वैल्यू आपका क्या आता है, 2/√3 है cosec का, cosec 120, टू बाय रूट थ्री कोसेक, हाँ cosec 120, 2/√3, cosecant 120, yes, sin cos and sec cosec, cosec 120 पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, cosec of 180 minus 60, क्वाड्रेंट है सेकंड, तो पॉजिटिव वैल्यू cosec ही रहेगा 60, तो साइन का उल्टा 2/√3 वैल्यू प्लस। अब आपके लिए वैल्यूज है 150 एंड 135, आप सभी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक बाद में करो, 150 और 135 डिग्री के लिए क्वाड्रेंट सेकंड में जाती है वैल्यू, 180 minus 30, अरे 180 minus 40, 1/2 sin 150 equal to 1/2, यस साइन 150, कॉस कितना होगा, minus √3/2, यस, और टेंजेंट no, -1/√3, कॉट -3, -√3, यस, सेकंड कॉट 1 -2/√3, 2/√3 कोसेक 150 minus 2/√3 1/2, +2, नहीं +2, साइन का रेसिप्रोकल उल्टा, yes +1/2, +2 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसलिए 135 के वैल्यू, साइन 135 1/√2, cos 135 -1/√2, tan 135 -1, -1, दिख रहे माइनस, cot -1, second 135 -√2 और cosec +√2, ओके समझ में है वैल्यूज। yes sir, तो ये 180 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा में, पाई माइनस थीटा में, ओके, तो पाई माइनस थीटा में कैसे रहेगा, अभी पाई के फॉर्म में कैसे रहते हैं, क्वेश्चन पाई के फॉर्म में कैसे आता है, वैल्यू हमें चाहिए, अगर मेरे पास है साइन ऑफ पाई/6, तो मैं इसको लिखता हूँ साइन ऑफ पाई माइनस पाई/6, समझे क्या आप लोग, पाई ये समझ में आना चाहिए कैसे लिखना है, yes sir, पाई/6, मेरे पास है सभी साइन के बाद tan cot sec सब लिखता हूँ, अभी साइन मेरे पास है साइन 3π/2, 3π/2 नहीं 2π/3, 3 - 2 1, ये साइन ऑफ पाई माइनस पाई/3, आप डिग्री में कन्वर्ट करके फिर रेडियन में आए तो आपको बेटर रहेगा, इसमें मत जाइए, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ये 180 माइनस थीटा से रिलेटेड है, पाई माइनस थीटा। अभी आ रहा है हमारा साइन 3π/4, साइन ऑफ पाई माइनस पाई/4, ये साइन पाई/6 पॉजिटिव है ना, साइन पाई/3, और ये साइन पाई/4, अगर ये कॉस होता तो माइनस माइनस माइनस, टैन तो माइनस माइनस माइनस, कॉट माइनस माइनस माइनस, सेक माइनस, और कोसेक फिर से प्लस, और वैल्यू वही आपको जो पुट करना है। हाँ यस यस, चलो हम जाएंगे 180 प्लस थीटा में, थर्ड क्वाड्रेंट में,
ये सब एंगल जो है प्लेन एंगल है। चलो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 180 प्लस थीटा इन विच क्वाड्रेंट? 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? टेंजेंट। टेंजेंट की वजह से कोटेंजेंट। बाकी कैसे? बाकी नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। हाँ यस, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, कोसाइन ऑफ 180 प्लस थीटा, टेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा, कोटेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा, secant of 180 प्लस थीटा, cosec of 180 प्लस थीटा। पहले हम सभी के साइन डिसाइड करेंगे। साइन मतलब चिन्ह। थर्ड क्वाड्रंट मध्ये हे मायनस, हे मायनस, हे प्लस, हे प्लस, मायनस, मायनस। ओके, थर्ड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट मध्ये पण रेशो तोच, साइन थीटा कॉस थीटा। 180 आला तर तोच रेशो, टॅन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कोसेक। राइट डाउन। और एक एग्जांपल ले लेंगे आप, नहीं हर एक एक ले लेंगे, बस सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल ले लेंगे। हाँ, साइन कॉस के लिए सेम एंगल, टैन कॉट के लिए सेम एंगल और सेक कोसेक के लिए सेम, ऐसे 3 एंगल ले लेंगे और तीनों को आपको फिर से बाकी के साथ कंपेयर करना है, फाइंड करना है वैल्यू। Sir, we can't able to see full board. नाउ Okay, sir. इतना ही प्रोपराइट है। हो गया सर। एग्जांपल लेते हैं। साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 240, 180 प्लस 60, उसका साइन नेगेटिव है, माइनस साइन 60, वैल्यू -√3/2 आएगा। देखिए साइन, फिर कोसाइन के लिए वही एंगल लेने वाले हैं हम, 240, कोसाइन ऑफ 180 प्लस 60, ये हो जाता है -cos60, क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड है तो -1/2। साइन कॉस हो गए 2 एंगल के लिए। अभी टैन कॉट दूसरे एंगल के लिए ले लेंगे, टेंजेंट। दूसरा कौन सा? 225, tan 225, टेंजेंट 180 प्लस 45। हम सभी एंगल के बारे में पता चाहिए, तो ये हो जाएगा प्लस tan 45। 180 प्लस माइनस थीटा में वैल्यू बदलती नहीं है, मतलब रेशो वही रहता है, रेशो नहीं चेंज होता है। 180 मतलब पाई, 360 मतलब पाई, पाई प्लस और माइनस थीटा, 180 प्लस और माइनस थीटा, 360 प्लस और माइनस थीटा, रेशो वही रहता है, tan 45 1। सिमिलरली cot 125, 225, cot 180 plus 45, cot 45, it is 1. Write down all this. अब सेक और कोसेक के लिए हम आपके लिए देते हैं 210 डिग्री का एंगल। अब लोग बताइए सेक और कोसेक मुझे 210 डिग्री का एंगल, ये फाइंड करने के बाद
ओके, तो tan 45 cot 45 और अभी हम दो एंगल रहे, दो रेशो रह गए ना, सेक और कोसेक थर्ड क्वार्टर में, उनके लिए एंगल बदल देंगे। सेकंड 210, सेकंड ऑफ 180 प्लस 30, मतलब माइनस सेकंड 30। अच्छी को वैल्यू मालूम है आपको, -2/√3 cos 30 से रिलेटेड होता है ये। कोसेक 210, कोसेक 180 प्लस 30, 180 माइनस कोसेक 30 -1 माइनस minus उल्टा 1 by उल्टा 2 -2 नहीं -2, ये गलती हमारे हमसे भी अभी लिखते समय हुई थी, -2। Have you written this? Hello. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट, अब रेडियन में कैसे रहेंगे? रेडियन में एक एंगल लेते हैं इसका, इसमें से एक रेडियन में, जो मेरे पास रेडियन में एंगल है, कोसाइन लेता हूँ मैं, कोसाइन तो 5π/4। अब देखो एंगल कोसाइन 5π/4, तो ये होता है पाई प्लस π/4। गौर से देखिए, पाई प्लस π/4, तो क्वाड्रेंट आया थर्ड, तो माइनस cos π/4, वैल्यू है -√2। कोसाइन ऑफ 2π/3 के बाद 4π/3, कोसाइन ऑफ 4π/3, पाई प्लस π/3 आपको भी आ जाएगा बाद में, माइनस cos π/3 -2। राइट ऑन बोथ द आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में आप। हो गया सर? पहले हम माइनस लिखते थे, जैसे हमारे पास था 2π/3, तो हमने लिखा था पाई माइनस π/3। अब हमने लिखा पाई प्लस लिख रहे हैं हम। पहले 3π/3 था 4, तो हमने लिखा पाई माइनस π/4। बहुत सिंपल है, इसमें कौन बड़ा है, 5 बड़ा है 4 बड़ा है? पाई ग्रेटर है Sir. कि नहीं? तो ऐसे Yes, sir. केस में प्लस लिखने का, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो पाई प्लस π/4। देखो 4π/3, पाई प्लस π/3 डायरेक्ट आ जाता ना, 1 + 3 4, ऐसा रहता है वो क्रॉस प्रोडक्ट करके। अगर उल्टा होता है तो सब ट्रैक करने का है। देखो हम सर, बताते हैं आपको कैसे आया था, दिखाता हूँ मैं, एंगल बताता हूँ, ये छोड़ दो एंगल। मेरे पास पे एंगल था 2π/3, अभी 3 बड़ा है तो इसको पाई माइनस π/3 लिखते हैं, देखो बराबर आ जाता है। मेरे पास से 5π/6, कौन बड़ा है, पाई माइनस π/6। अब मेरे पास उल्टा है, अगर ये 3π/2 छोड़ दो, 4π/5, कौन ये ग्रेटर है, तो ये भी रहेगा पाई माइनस π/5। देखो पाई माइनस π/5, बट मेरे पास उल्टा है, इसमें कंपैरिजन अच्छा है, ये बड़ा है, तो ये पाई प्लस π/4। चलो ये डिनोमिनेटर वैसा ही रहता है सब जगह। ये तीन देख लो, ये 3 प्रॉब्लम, बाकी कुछ जरूरत नहीं आपको देखने की। ज्यादा प्रॉब्लम देखे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी मैंने बताना नहीं चाहिए था। ठीक है, चलो अभी जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो ना, 2π/3 मतलब पाई माइनस π/3 और 2 एक का डिफरेंस है, पाई माइनस π/3। एक का डिफरेंस तो बहुत सिंपल होता है। कितने का भी डिफरेंस रहने दो, वो डिफरेंस उधर आता है, 3 - 2 1, 6 - 5 1, 5 - 4 1, वो आता है ना 1π/5।
4 minus 5 minus 4 1 1 pi by 4 पाई प्लस करना है माइनस करना है आपको डिसाइड करना है, बहुत ही सिंपल है। एक प्लस होगा या माइनस होगा डिफरेंस को लेके, कौन सा भी एंगल लिख सकते हो आप, प्रैक्टिस करो खुद। नेक्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ में 180 नहीं रहता है, 360 के पीछे रहता है एंगल, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझे क्या आप लोग? 360 उसको रेडियन में लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। अब एंगल लेते हैं 300 डिग्री, इसमें कौन पॉजिटिव रहता है? कॉस एंड सेकंड पॉजिटिव, बाकी सभी रेशियो नेगेटिव रहते हैं। चलो अब साइन 300 डिग्री। अच्छा आपको फॉर्मूले पता लगा ना, क्या है फॉर्मूला? 360 माइनस थीटा, साइन हो, कॉस हो, टेंजेंट हो, सेकेंड हो, कोसेक हो, बीच में रह गए कॉट, सेक और कोसेक। लिखो आप लोग, मुझे बताइए आंसर सब जगह, यू हैव टू राइट इट। 360 माइनस थीटा सब जगह आपको लिखना है, 1 2 3 4 5, और ये रह गए सेक, कौन सा रह गया? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, 6 हो गए, कॉट का रह गया था। लिख दीजिए, आपको लिखना है। साइन बताइए मुझे, सब जगह साइन कॉस टैन ही रहेगा, इसमें भी बदल नहीं है, ये साइन ही है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपको सिर्फ प्लस माइनस का साइन बताना है, ये दोनों माइनस प्लस साइन, रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। देखो यस yes, कॉस you are और सेक एक प्लस। पॉजिटिव रहेंगे। हाँ चलो हम कुछ प्रॉब्लम ले लेंगे, 3 प्रॉब्लम ले लेंगे इसमें से, रेडियन में ले, रेडियन भी डिग्री भी, 3 ही प्रॉब्लम ले लेंगे। बाकी आपको एक कॉस का होगा, एक टैन का होगा, साइन का होगा, सेक कोसेक के नहीं होंगे। कोसाइन का एक प्रॉब्लम लेते हैं, कोसाइन 300। कोसाइन 300 को हम लिख सकते हैं कोसाइन 360 माइनस 60, तो हो जाता है प्लस कॉस 60, और ये हो जाता है 1/2। 1/2। अभी साइन, हाँ ये साइन 330, तो ये हो जाता है साइन ऑफ 360 माइनस 30, अलग अलग एंगल लिए, तो माइनस साइन 30, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो माइनस 1/2। टेंजेंट के लिए ज्यादातर जो प्रॉब्लम रहता है वो है, हाँ यस 315, टेंजेंट 360 minus 45, minus tan 45, answer -1, write down all these things. हो गया सर? ओके अभी और एक रहता है, रेडियन में बताता हूँ। समझे, मेरे पास है साइन रेडियन में 2 पाई माइनस थीटा में, साइन 7 पाई बाय 4, टू जार 8, तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4, देखो ना, और 2 जार 8 माइनस 1, 7 आता है कि नहीं? इसका डबल करने का, और उससे माइनस करके ये 7 आता है तो करने का। और एक Sir, why देखो we take it to 5 5 by 6, नहीं 5 5 by 3, देखो 5 by 3, देखो 5 by 3, 3 का डबल करो 6, 6 minus 1 5 आता था, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 2 पाई माइनस, ऐसा थोड़ा थोड़ा
थोड़ा ऐसा कुछ लॉजिक लगा के क्या करना है एंगल को, बाकी आपको पता है क्या करना है, सिर्फ मैं एंगल बता रहा हूँ कैसे 7 पाई/4। अभी और एक एंगल है 330 का मतलब 11 पाई/6। देखो 11 6 2 12 है क्या नहीं, तो 2 पाई माइनस पाई/6 2 देखो पाई माइनस पाई/6। ये टेक्निक है लिखने का, कैसे जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कैसे लेके जाने का एंगल को। राइट डाउन। हो गया। अभी अभी हम आए थे फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फिर से एक रोटेशन कंप्लीट करके, तो एंगल होता है 360 प्लस यानी 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा के लिए ऑल पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं अभी। हाँ, ऑल पॉजिटिव। तो साइन का वैल्यू साइन थीटा, कॉस का वैल्यू कॉस थीटा, tan का वैल्यू समझो 390 डिग्री है, तो क्या होगा साइन साइन 30, कोसाइन के लिए cos 30, tan के लिए tan 30, cot के लिए cot 30, sec के लिए sec, cosec के लिए cosec 30। समझो ये एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव है सब, समझे क्या आप। अब ये थे हमारे 180 प्लस और 360 प्लस माइनस, वैल्यू बदलती नहीं है, सिर्फ साइन चेंज होता है। 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस। 180 को लिखते हैं आप पाई प्लस और माइनस, और 360 को आप लिखते हो 2 पाई प्लस और माइनस थीटा। समझे आप लोग। ओके, तो नो चेंज इन द वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बदलता नहीं, एंगल बदलता है और साइन चेंज हो जाता है। अब हम जाएंगे 90 और 270 में। 90 की जरूरत है हमें ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक, रिपीट करा ना 90 चार। प्लस 90 माइनस। 90 एक्सक्यूज मी माइनस सर, मैंने कल ही दिया हे 4 रिपीट करा ना हाँ? एकदा. था। कोणते राईट हँड साइडला तुम्ही लिहिलेलं पाय प्लस मायनस थीटा 180 प्लस मायनस. 180 प्लस मायनस झालं ना, आपण जे घेतलं तेच लिहिलं मी फक्त. आपण सगळं घेतलं ना आता ते लिहिलं फक्त. तुम्ही एक 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 वाचा त्याला जे लिहिलं असेल तुम्ही. कन्फ्यूज व्हायला आता जर मी रिपिटेशन केलं तर. अँगल रेशो तोच राहतो, मला हे सांगायचंय. साइन 180 प्लस थिटा रेशो साइनच राहील हे सांगायचं. मग तुम्हाला अँगल कसा घ्यायचा, साइन चेंज कसं करायचं ते क्वाड्रंट नुसार होईल. पण तुम्ही जर 90 किंवा 270च्या फॉर्म मध्ये लिहिलं तर रेशो बदलून जातो. एवढाच बदल आहे, बाकी सगळं तेच आहे. मग साइन बदलणं, वैल्यू लेना। चलो आगे, इनको कहते हैं अलाइड एंगल। बंद करूँ ये दूसरा, आगे लिखो। यस सर। आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने इसको रिपीट किया तो, यू विल बी कंफ्यूज। ओके, हमारा डिस्कशन कहाँ चल रहा है, 90 के लिए। अब हम जाएंगे फिर से उसी क्वाड्रेंट में। ये हमारा 2 पाई प्लस थीटा होता है, ये होता है 2 पाई माइनस थीटा, ये होता है पाई माइनस थीटा, ये होता है पाई प्लस थीटा। डिग्री में लिखेंगे 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इधर लिखेंगे 180 माइनस थीटा, ये होता है 180 प्लस थीटा। समझे आप लोग। अब 90 के बारे में हम कैसे लिखते हैं इसी एंगल को। ये होता है 270 प्लस थीटा और ये होता है 270 माइनस थीटा। मतलब ये होता है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और ये होता है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्वाड्रेंट। इधर कुछ नहीं, इधर 90 माइनस थीटा होता है। 90 माइनस थीटा उसको लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा और ये होता है 90 प्लस थीटा। आगे जाना है, ऐसा रोटेशन है अपना, तो आगे हम ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे आगे जाना मतलब प्लस,
समझ में आ रहा है क्या आपको? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन समझ में आ रहा है आपको? सर पूरा हेलो, बोर्ड नहीं दिख रहा है। आपको ओरिएंटेशन समझ में? हम ऐसे घूम रहे हैं, मैं एरो दिखा रहा हूँ ये ऐसा। नागपंचमीला भिंतीवर असे नागाचं चित्र काढायचं आम्ही लहानपणी. हे असं आम्ही विकत नाही घ्यायचो चित्र, आम्हाला विकत नाही चालायचं. गेरू असायचा, गेरू किंवा गंधाने, आणि मग त्याची पूजा करायची. आता काय नागाचं चित्र, तर उसका ओरिएंटेशन देख लो. आप ऐसा कर सकते हो, कैसा कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है. इसका ओरिएंटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन. येस, मंदिराभोवतीच्या प्रदक्षिणा आपल्या अशा आहेत, त्याच्या उलट आहे हे. तुम्ही फॅन फिरताना बघितलं कसा फिरतो, आपण काहीच बघत नाही. मी तर खूप वर्षांनी बघितलं होतं.